Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today is 3rd of June 2020. Today our topic is the third stanza of the poem Speak Up. बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने पहले दो स्टेंजा थे उनको एक्सप्लेन किया। आज हमें तीसरा स्टेंजा पढ़ना है। तो तीसरा स्टेंजा पहले मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा। Speak up now, for time is running out. Before your body and mind fade away, tell us, for truth is not yet dead. Speak whatever you have to say. These are the concluding lines of the poem. ये आखिरी 4 लाइन्स है इस पोएम की। तो आज हमें इन लाइन्स को एक्सप्लेन करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने जो दूसरा वाला स्टेंजा पढ़ा, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वो दूसरे वाले स्टेंजा में शायर ने बहुत सारे सिंबल्स को यूज़ किया है जो हमने ऑलरेडी कल डिस्कस किया है। तो आज शायर क्या कहना चाहता है? स्पीक अप नाउ, नाउ द परफेक्ट टाइम हैज़ कम, यू मस्ट स्पीक नाउ। वो जोर देता है इस बात पर कि नाउ द स्टेज इज सेट, द मार्टियर्स हैव sacrificed their lives, they have for a particular idea. इन शहीदों ने अपना गर्म खून दिया है। तो जैसे हम जानते हैं कि when the iron is hot or it is red hot, it can be given any shape, but once it gets cold, it will again become as hot as ever. स्टेज सज चुका था तो अब लोहे को कोई भी शक्ल दे सकता है एक लोहार। अब लोग जो थे they have already begun their protests or voices against the oppression, against the tyranny, against the brutality of the Britishers. That's why in the concluding lines the poet insists his countrymen, or the poet insists his readers, speak up now, you must speak, for the time is running out, because the time is passing out. Running out means it is coming to an end. अब वक्त तेजी के साथ गुजर रहा है। Before your body and mind fade away. Now in the second line, before your body, इससे पहले कि आपका जिस्म और आपका दिमाग fade away. Fade away means to vanish, to disappear, to become weak. क्या आपका जिस्म कमज़ोर हो जाएगा, या आपका दिमाग, आपका जहन कमज़ोर हो जाएगा, या आप मर जाओगे, या आप में एक कुदरती कमज़ोरी आएगी। तो इससे पहले इट इज़ बेटर टू स्पीक, और इट विल बी टू लेट। ये मुनासिब वक़्त आया है। अगर आप इस वक्त नहीं बोलोगे फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि द स्टेज हैज़ बीन सेट by the blood of the martyrs, and that's why he insists here, and mind fade away before your body and mind fade away, कि इससे पहले आपका जिस्म या आपका दिमाग आपसे छीन लिया जाएगा। और डेथ कम्स, आपको मौत भी आ सकती है। तो वक़्त का तकाजा यही है कि आपको अब खामोश नहीं बैठना है। आपको क्या करना है? अगली लाइन में शायर Tell us, for truth is not yet dead. आप सब बोलिए that truth is not yet dead. Truth never dies. सच्चाई कभी मरती नहीं है। Truth prevails against falsehood. हम उर्दू में कहेंगे सच्चाई की हमेशा जीत होती है। इसको कितना भी छुपाया जाए, बहरहाल सच्चाई सामने आ ही जाती है। That's why the poet says, tell us, for truth is not yet dead. Tell us. It here means that common people at that particular time, they should also join the struggle.
and raise their voice against the oppression. जो आम लोग हैं उनको इस तहरीक का एक हिस्सा बनना है, इस जदोजहद का एक हिस्सा बनना है, एंड रेज देयर वॉइस, और उनको अपनी आवाज़ बुलंद करनी है जुल्म के खिलाफ। और इसीलिए आखिर के लाइन में शायर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है। एंड इन द कंक्लूडिंग लाइन द पोएट सेज, whatever you speak, whatever you have to say, आप बोलिए जो कुछ आपको कहना है। It means that you have kept buried some things, you have kept hidden some things in your hearts, in your minds. आपने जो छुपा के रखा अपने दिल में, अपने दिमाग में आज तक, अब वो मुनासिब वक्त हो चुका है, मुनासिब वक्त आ चुका है। Speak whatever you have to say. Now you must speak what is inside your heart. And I think this is enough as far as for the explanation of this third stanza is concerned. और उसके आगे क्या इम्पोर्टेंट है, ग्लॉसरी में कुछ वर्ड्स हैं, वर्ड मीनिंग तो एग्जाम में आ ही जाती है। The first word is sealed. Here it means locked or closed. The second word is upright. It means straight, honest. Then there is simidi. उर्दू में कहेंगे लोहार खाना, a place where things are made out of metal, especially iron or steel. Then there is another word that is padlocks. Padlocks, a small metal lock with a U-shaped bar, fetter, a chain or shackle for the feet. Then there is another important word that skirting. Skirting means avoidance, dodging, escaping. नो बच्चों, आप एग्ज़ाम के लिहाज से स्टेंजा थर्ड में अगर आपको समरी आएगी तो हाउ कैन यू कंप्लीट द समरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो लेट अस बिगिन द समरी। द पोएट कॉल्स अपॉन हिज डैश डैश, द पोएट कॉल्स अपॉन हिज कंट्रीमैन टू स्पीक अप नाउ or it will be too late. The poet says that the truth is not yet dead. It's known to everyone what is just and what is unjust, what's right and what is wrong. Therefore, everyone must speak and say whatever they have to say. तो बच्चों इसी तरह से एग्ज़ाम में समरी आती है एंड यू हैव टू जस्ट कंप्लीट द समरी। तो उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एग्ज़ाम में आती है, विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू इन द प्रीवियस लेक्चर्स, वो क्या है, दैट इज़ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। पोइट्री के सेक्शन में वर्ड्स और मीनिंग्स अक्सर आ जाती है। तो हियर सम वर्ड्स, रनिंग आउट, द फर्स्ट वर्ड इट मीन्स बीइंग फिनिश्ड, कमिंग टू एन एंड। देन देयर इज फेड अवे, इट मीन्स वैनिश, गायब होना, disappear, to become weak. Fierce, it means violent, खतरनाक, ferocious, furious. और इसी तरह से बच्चों जो एग्ज़ाम में समरी आती है उसको कंप्लीट करना होता है। वर्ड्स की मीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पोइट्री के सेक्शन में। और जो ऑलरेडी मैंने मटेरियल आपको सेंड किया है उस पर आपको थिंकिंग अबाउट द पोएम टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं और लिटरेरी डिवाइस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है लिटरेरी डिवाइस में, व्हाट आर द मेटाफोर्स यूज्ड इन द पोएम। तो मैंने ऑलरेडी कल ये सेकंड स्टेंजा में डिस्कस किया है कि बहुत सारे यहाँ पे मेटाफोर्स यूज हुए हैं। द पोएट हैज़ गिवन कंपैरिजन, डायरेक्ट कंपैरिजन। जैसे मैंने कल आपको बोला था स्मिदी, it symbolized the freedom struggle of India that was going on that particular time. इसी तरह से एक और word which is used as a metaphor, that's red oven. It is the heat generated by the blood of the martyrs. Then there is first flames. So first flames here, it means the voices of the people. It means the voice of the people. And padlocks and slavery, these are the symbols of padlocks and fetters, these are the symbols of slavery. So these are the various metaphors used by the poet in this poem. तो एक और क्वेश्चन है लिटरेरी डिवाइस का, व्हाट इमेज डज द पोएट ड्रॉ फ्रॉम द ब्लैक स्मिथ शॉप। इट हैज़ बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड। कौन सी तस्वीर शायर पिक आउट करता है, ड्रॉ करता है फ्रॉम द ब्लैक स्मिथ शॉप। तो यही तस्वीरें
It's smithy, it's rattle and first flames. The padlocks are already opening their mouths, and each fetter is skirting around. So I think this poem it's very important for the examination point of view. तो बच्चों, जितना भी मटेरियल मैंने आपको सेंड किया है आप उस पर भी पढ़ेंगे। वहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर है, वहाँ पे लिटरेरी डिवाइस के बारे में पूरा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वीडियो अपलोड करने में गो कि ज़्यादा वक्त लगता है। तो मेरे ख्याल में आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरत से होंगे और आप अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। थैंक यू, इट्स एनफ फॉर टुडे।